चलो, let us start with invitation and reply. पहले तो ये बताओ, in the present time, what is the utility of invitation and sending their replies? Why do we need them? बोलो, boys. What is the use of invites in the present time, and how, in which mode do we send them? हम किसी ओकेजन को मतलब सोशल गैदरिंग टाइप करने के लिए. Okay. So which kind of invites are now in trend? If I talk about the present situation of pandemic, lockdown, which kind of invites are people generally going for? मैम फॉर कोविड टेस्टिंग एंड अरे नहीं वैक्सीनेशन. नहीं, कोविड टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो वेडिंग के टाइम पे जो भी इनवाइट्स वगैरह लिखे जाते हैं, आजकल किस तरह के इनवाइट जा रहे हैं? आर द पीपल गोइंग फॉर द ट्रेडिशनल काइंड ऑफ इनविटेशंस, that invitation card is going on, or there is some other mode? I think e-invites are now in trend. Yes, ma'am. Yes, the latest Yes, ma'am. trend going on emails or on our phones, on status. People put those e-cards. They send the e-cards to their friends and relatives. Yes, even the presence of the people is becoming virtual now these days. The marriages are taking place on a platform, and the meeting link is shared with the people. They can send the amount of gift through Paytm or through Amazon as in the form of gift voucher, and the wedding is attended by the close friends and relatives, or the friends and relatives who are interested. So both the virtual as well as physical mode is combined. So we are now today talking about invitations which are sent not only for an informal event but a formal one as well. Yes. So how the invite is written, जैसे हमने, आपको याद होगा, लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है जो हमें लर्न करना होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो हम उसी तरह के एक स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे करेंगे. वी विल टॉक अबाउट अ फिक्स स्ट्रक्चर, अ फिक्स फॉर्मेट that we need to follow, and we need to learn that by heart to get hold of the topic of invitation. Yes. So firstly, we are going to talk about formal invitation. Formal invitation means, what do you mean by formal invitation? मैम फॉर एवरीवन. Formal invitation means for a formal gathering. It means, Invitation to brother, sister, or close friend. yes, means when you are talking about a wedding invitation, a party invitation, a celebration for inaugurating something, yes, then it is formal invitation. राइट. अब यहाँ पे भी जैसे हम नोटिस राइटिंग करते थे, काफी कुछ सिमिलर है, तो ध्यान देते हैं कि हमने क्या करना है. सो अक्षत, आज आप लेट क्यों हो गए बेटा जी? अक्षत, आर यू देयर? व्हाई वर यू लेट टुडे? यस मैम. लेट क्यों हो गए? मैम वो लैपटॉप खराब हो गया ना, तो दूसरे लैपटॉप में आईडी डाली है. अर्णव का नाम आ रहा था पहले, मुझे पता लग गया था कुछ गड़बड़ है. चलो अक्षत, अब एक काम करो, रीडिंग करना स्टार्ट करो बेटा, from the top, main characteristics. Just Okay ma'am. A formal invitation is normally a single sentence presentation in third person. Formal invitations are generally printed invitation cards. We use them to invite guests on some auspicious occasion like birthdays, weddings, inauguration of shops, houses, etc. The invitation answers the questions who, whom, when, where, what time, and for what. That is the occasion, name of the invitee, name of the host, date, time, venue. The other details include name, destination, and address of the organizer, sponsor, or host of this name of the chief guest or special invitees in case of an official invitation. Okay, Akshat, stop it. Printed. Akshat, stop it. हाँ. So firstly, we'll talk about formal invitation. अब पहले मुझे इस लाइन का मीनिंग कौन बताने वाला है? A formal invitation is normally a single sentence presentation in third person. What do we mean by this? What do we mean by this? Yes, boys. And that the whole invitation is without any full stop.
Yes, the whole invitation is without any full stop. It is a particular single line. Yes, and it is written in third person. अब आप लोगों को याद है मैंने third person पहले भी बताया था क्या होता है. प्लीज वापस बता दो. First person means I or we. Second person means ओके you. ओके. Third person means he, she, it, or they. So here third person is talking about, means we cannot use I, we, or you. So it is presented in third person. Formal invitations are generally printed invitation cards. अब ये statement जो है थोड़ा सा questionable हो गया present time में, because these kind of invitations, formal invitations are now going on in e-invites in the form of e-invitation cards. We use them to invite guests on some auspicious important occasion like birthday, wedding celebration, inauguration of a shop, or housewarming ceremony. Housewarming ceremony क्या होती है? मैम मुहूर्त. Yes, घर का जो मुहूर्त होता है. The invitation answers the question. अब आपको याद है जब हम notice writing करते हैं, the notice answers the question what, when, where, why, who, whom, what time. So all these questions are again going to be answered by our invitation. Notice होता है सबके लिए, invitation होता है खास लोगों के लिए जिनको हम invite करना चाहते हैं. So what we are going to talk about, the occasion, the name of the person who is inviting, then the name of the person who is invited. अब invitee का मतलब क्या हुआ? Who is invitee? The one who is inviting. No. Host हुआ जैसे Person मैं who हूँ. is invited. Yes, अगर मैं पार्टी होस्ट कर रही हूँ. Yes, अगर मैं पार्टी होस्ट कर रही हूँ तो मैं क्या हुई? होस्ट. और मैंने जिसको इनवाइट किया वो कौन है? इनवाइटी. राइट? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. अब आ रही है बेटा आवाज? यस मैम. यस मोहित, यू रेज हैंड बेटा. मोहित यू मैम रेज. लास्ट क्लास वेडनेसडे को हुई थी ना? हाँ, फ्राइडे को मेरा फास्ट था ना, आई टोल्ड यू. आवाज ही नहीं Okay, निकल रही थी क्योंकि तुम मैम fast मेरे कर को ऐसे लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ दिया. नहीं, हमने टॉपिक ही आज स्टार्ट किया. ठीक है, ओके. तो अब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट ओकेजन. देन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी होस्ट और इनवाइटी कौन होता है. इफ आई एम होल्डिंग अ पार्टी, अगर मैं पार्टी होस्ट कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? जो वेलकम कर रही हूँ सबको, तो मैं हूँ होस्ट. और मैंने जिन लोगों को इनवाइट किया है वो सारे कौन है? इनवाइटी. डेट, टाइम, वेन्यू. Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चा. मैम जो होस्ट करता है हम उसे इनवाइटर कह सकते हैं. नहीं, होस्ट ही कहते हैं उसे. ओके मैम. Okay. The other details that include name, designation. कई बार हम जब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर रहे होते हैं तब होता है डेजिग्नेशन. एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर. कई बार कई इवेंट्स को स्पॉन्सरशिप भी मिलती है. और होस्ट और द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट. कई बार हमारा जो इवेंट होता है उसमें कोई चीफ गेस्ट होता है, कोई स्पेशल गेस्ट होता है इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इन्विटेशन. अच्छा चलो, इसके बाद चिरांश आगे आप पढ़ो बेटा. Yes, ma'am. Printed formal invitations do not include the name of the addressee. Invitations to VIP to preside over a function do carry the name of VIP prominently. Length as per CBSE guidelines is limited to 50 words. अब ये लेंथ वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी करता है. ठीक है, ये जो वर्ड लिमिट वाला है ये वेरी करता है. हर बार सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ता है. जनरली दे आस्क फॉर 50 वर्ड्स ओनली. देन प्रिंटेड फॉर्मल इन्विटेशंस डोंट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेसी. अब क्या हुआ भाई? नेम ऑफ द एड्रेसी. जो फॉर्मल इन्विटेशन होते हैं वहां पे कौन होता है? एड्रेसी मींस जो एड्रेस कर रहा है. मैम होस्ट. हाँ, होस्ट. नहीं, प्रिंटेड फॉर्मल इन्विटेशन में उसका नाम नहीं होता बेटा. किसके लिए है? क्योंकि उसको जो हम बाय हैंड देते हैं ना जनरली, या ऊपर लिखा जाता है अलग से. एड्रेसी रेफर्स टू द वन टू whom द इन्विटेशन इज एड्रेस्ड. अब जैसे हम लोगों ने इनविटेशन कार्ड छपवा लिया, अब किस किस को देना है वो तो हम बाद में लिखते हैं ना. सबका थोड़ी नेम लिखा होता है ऊपर. अगर आपने शादी का इनविटेशन कार्ड कभी देखा है, शादी के इनविटेशन कार्ड में क्या होता है? आपके घर जब कोई शादी का इनविटेशन कार्ड देने आता है तो उसमें क्या होता है? आपका नेम प्रिंटेड तो नहीं होता ना. दे हैव रिटन इट बाय देयर हैंड.
Yes, तो ma'am. प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड्स डोंट इंक्लूड द नेम ऑफ अड्रेसी, मतलब जिसको लिखा जाना है उसका नाम नहीं होता, जिसको दिया जाना है। इन्विटेशंस टू वीआईपी टू अटेंड द फंक्शन डू कैरी द नेम ऑफ अ वीआईपी प्रोमिनेंटली। अब अगर एक वीआईपी को आप इनवाइट भेज रहे हो तो उसमें वीआईपी का जो नाम है वहां पे वीआईपी का नाम प्रोमिनेंटली हाईलाइट करके मेंशन किया जाता है, क्योंकि उनकी अटेंशन लेने की हाँ आप वीआईपी हो तो आपको आना ही आना है हमारे इवेंट। लेंथ हमने ऑलरेडी बात कर ली, वर्ड लिमिट क्या है 50 वर्ड्स, ठीक है। चलो अब आगे हम, हाँ जी बच्चा बोलो। मैम मतलब जो वीआईपी का नाम होता है वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है। हाँ वीआईपी आपने देखा नहीं कहीं, आपने वो स्कूल के एनुअल फंक्शन का इनविटेशन कार्ड देखा है कभी? उसमें वीआईपी का नाम कितना Yes, ब्रॉडली लिखा होता है, चाहे वो वीआईपी कोई जा रहा है वहां पे वीआईपी का नाम जब भी हमें दिया हुआ है कि कौन पर्सन वीआईपी, एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है या एमएलए है, जो भी है उनका पोस्ट और उनका जो नेम होता है वो बड़ा प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया जाता है, सो एज टू ग्रैब एवरीवन्स अटेंशन। कई बार ये भी यूएसपी होती है फंक्शन की कि कौन सा वीआईपी आ रहा है। इलीट पार्टीज में ये भी होता है, some people attend the event just because they want to meet that particular person, see that particular person, ठीक है। yes मैम। चलो अब आगे जो हम देख रहे हैं, दो तरह के इनविटेशन होते हैं। एक तो वो इनविटेशन होता है जो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा जाता है, एक इनविटेशन होता है जिसको प्रिंट करवाया जाता है, ठीक है। तो चिरांश बेटा कंटिन्यू रीडिंग। Okay, ma'am. Messrs. Shubham Lai and Sons are opening a new general store, Galaxy Novelties, in Gitanjali Enclave, Dwarka, Delhi. The inauguration ceremony is fixed for Sunday, the 19th of October at 11 a.m. Prepare a draft of formal invitation letter to the purpose. Messrs. Shyam Lal and Son announced the opening of Galaxy Novelties, a general store in Gitanjali Enclave, Dwarka, Delhi. Inauguration on Sunday, the 19th of October at 11 a.m. All are cordially invited. Visit for all kinds of ग्रोसरी एंड grocery and domestic items. Avail inaugurational discount of 10% on all goods. RSVP Galaxy Novelties phone number. यस हर्षित, यू रेज्ड हैंड। मैम आरएसवीपी होता क्या है? बहुत कार्डों में देखा। हाँ आरएसवीपी का ना एक फुल फॉर्म होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा वैसे तो अभी, फिर भी मैं अभी दिमाग पर जोर डालती हूँ, आ जाएगा, हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। RSVP आई थिंक इट स्टैंड्स फॉर, हाँ ये कुछ फ्रेंच टर्म होती है, रिस्पोंडेस सिल्वियोस प्लेट, इसका मतलब होता है प्लीज रिप्लाई, ठीक है। RSVP मीन्स प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बोलो। मैम एक बार आप प्लीज इनविटेशन का वो बता दो फॉर्मेट कैसे है, हम समझ नहीं आ रहा। यस मैम। अभी अभी फॉर्मेट भी डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये वो ये जो आप ये इनविटेशन अभी पढ़ा ना चिरांश आपने, ये इनविटेशन है जो जनरल पब्लिक के लिए। आपने कभी देखा कोई नया स्टोर ओपन होता है, मॉल की ओपनिंग हुई है, कोई ऐसी ओपनिंग हुई है जो कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है, ये उस तरह का है। तो हर एक तरह का इनविटेशन जो है अलग होता है। यहाँ पे हम पहले जनरल इनविटेशन की बात कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है लोगों की अटेंशन लेने के लिए, ये उस तरह के इनविटेशंस की बात कर रहे हैं हम पहले। जो पर्सनल इनविटेशन होते हैं ना फॉर्मल लेवल के, उनका फॉर्मेट अलग होता है। ये इनविटेशंस होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की फॉर्म में जो दिए जाते हैं। तो मैम ये इनफॉर्मल है? नहीं नहीं फॉर्मल है, फॉर्मल है। 4 फुट 3 इंच चाहिए, वहां तो पौने 4 फुट थी, तो वेट तो चलो सो अब ये वाला क्लियर है। ये वाला वो इनविटेशन है जो न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है ना, न्यू स्टोर ओपनिंग हुई है, न्यू आउटलेट ओपन हुआ है, उस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट आती है कि जनरल पब्लिक के लिए ओपन है, आप लोग आ जाओ, राइट, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, ये उस तरह का इनविटेशन था। यस ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो तुम्हें आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या है, ये वाला इनविटेशन जो है उन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए किया है, ठीक है। हाँ जी बोलो चिरांश। मैम हमें क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि हमें मतलब इनविटेशन फ्रेंड्स या फैमिली के लिए बनाना है या फिर मतलब कॉमनली बनाना है? ऑब्वियसली आपको अगर एक बात बताओ, एक इनविटेशन देना है अपने ब्रदर की वेडिंग एनिवर्सरी का, तो आप जनरल पब्लिक को तो नहीं दोगे ना इनविटेशन,
अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दोगे तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने कोई स्टोर ओपन किया है या मैं कोई जनरल, मेरा कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, मैं जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर रही हूँ, तो वहां क्या हुआ, वहां पे मुझे जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए जहां पे चाहिए वहां पे मैं उस हिसाब से लिखूंगी। जहां मुझे पर्सनली लोगों को इन्फॉर्म करना है वहां पे मैं उस हिसाब से लिखूंगी कि पर्सनली मुझे इन्फॉर्म करना है, तो उन्हीं लोगों को जाएगा ये इन्विटेशन, ये न्यूज़पेपर में थोड़ी जाएगा। अब जो ये वाला है सेकंड क्वेश्चन, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राजकरण ऑफ 38 कमल कुंज which they may use to invite their friends and relatives on 5th birth anniversary of their son Nikhil at their residence. तो अब यहाँ पे this invitation is made on the similar kind of frame, but it is going to be sent to the friends and relatives only. Right? हमें फॉर्मेट को Yes. क्या याद रखना है? अब देखो सबसे पहले क्या है फॉर्मेट, अभी आप लोगों ने पूछा था ना, दोनों तरह से मैं फॉर्मेट अभी समझाऊंगी। पहला फॉर्मेट जो ये जो हम बॉक्स स्टाइल में लिख रहे हैं, सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट, राइट, नेम ऑफ द Yes, होस्ट ma'am. मिस्टर एंड मिसेस राजकरण। उसके बाद वो लाइन आएगी रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस और रिक्वेस्ट योर वर्चुअल प्रेजेंस, जो भी, अगर आप इनवाइट लिख रहे हो तो वर्चुअल प्रेजेंस हो जाएगा, अदरवाइज रिक्वेस्ट योर बिनाइन एंड ब्लेस्ड प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। फिर उसके बाद हमने फिर इवेंट का नाम लिख दिया, इवेंट क्या है, फिर किसका है और कहाँ पे है, किस टाइम पे है, डेट क्या है, and then again please reply RSVP means please reply Mr. and Mrs. Rajkaran और फोन नंबर। तो फॉर्मेट में वही सब कुछ है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है ना, वही सब कुछ है फॉर्मेट में। नहीं नहीं मोहित, ये हमेशा बॉक्स में आएगा ऐसा नहीं है, अभी हम वो वाले पे पढ़ेंगे जो बॉक्स में नहीं आते, ठीक है? Excuse me, Okay. ma'am. हाँ जी, मैम जैसे इस इनविटेशन में 5th बर्थडे एनिवर्सरी के नीचे लिखे ऑफ देयर सन, तो मैम इस केस में देयर वर्ड यूज हुआ है। देयर इनका है ना, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण है ना, वो ये थोड़ी लिख रहे हैं वी आर इनवाइटिंग यू, नहीं, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण आर इनवाइटिंग यू टू द बर्थ एनिवर्सरी, 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन, तो सब कुछ थर्ड पर्सन में हो गया ना। ओके मैम। ओके, हमने कहा ना हमने थर्ड पर्सन यूज करना है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं यूज मैम करना। पर थर्ड पर्सन में तो ही शी और इट आता है ना। हाँ, ही शी इट दे का ही तो फॉर्म है देयर, दे देम Okay. देयर, ठीक है? जब हम पोजेसिव बनाते हैं दे से तो वो देयर बन जाता है, THEIR, ठीक है? ओके मैम। चलो अब देखो, हम नेक्स्ट अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो एनुअल फंक्शन का आगे हमने अभी डिस्कस किया था ना। चलो हर्षित आप पढ़ो बेटा। हर्षित मैम क्लास में नहीं है। क्लास में नहीं है हर्षित जी, लीव कर जाते हैं बार बार। मोहित आप पढ़ो। मोहित मोहित आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है? अरे डेड सेल्स। Yes, ma'am. चलो पढ़ो आप। You are a student of Newton Public School, Nagpur. The school is holding its annual function on Saturday, the 15th November 2022 at 11 a.m. The HRD Minister, Dr. M.M. Joshi, has consented to be the chief guest. Design an invitation card to be sent to the parents and other invitees. Do not exceed 50 words. The principal, staff, and students of Newton Public School, Nagpur, solicit the pleasure of your company on the auspicious occasion of the annual function of their school at 11 a.m. on Saturday, the 15th November 2022. Dr. M.M.C. HRD Minister, Government of India, will be the chief guest and give away the prizes to the students. RSVP, Principal Newton Public School, Nagpur, phone number 32546. हाँ अब देखो, हाँ जी हर्षित आपने हैंड रेस किया। हम एक बार मैम वापस फॉर्मेट बता देना। हाँ फॉर्मेट में दोबारा ही बता रही हूँ। ये देखो सबसे पहले होस्ट का नाम, यहाँ पे होस्ट क्या है? प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट। कहाँ के? न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर, ठीक है? उसके बाद ये लाइन आएगी, सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी और लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। अब हमने क्या लिख दिया? इवेंट का नाम, ठीक है? फिर टाइम,
day, date means when, what, when, then who is going to be the chief minister and what is going to be there in the event. Then please reply principal, क्योंकि आप principal के उससे लिख रहे थे ना, principal की साइड से जाएगा ना कार्ड. चांजी चिरांच. मैम इसमें हम वेन्यू मेंशन नहीं करके करते कि मतलब कहाँ पे होगा पूरा फंक्शन. अगर वेन्यू हम तब मेंशन करते हैं बेटा, यहाँ पे वेन्यू मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहीं पे है, स्कूल में ही है. अगर वेन्यू जैसे क्या होता है, कई स्कूल जनरली आपने देखा होगा, स्कूल जनरली अपने ही स्कूल के जो ग्राउंड होता है उसमें रखते हैं एनुअल फंक्शन. अगर अलग से होता है यहाँ पे कुछ, हाँ बोलो बोलो. मैम क्योंकि जो लास्ट वाला इनविटेशन था मैम उसमें भी मेन्यू मेंशन नहीं था. एक मिनट रुको, वहां पे वेन्यू नहीं था तो मतलब उनके घर पे था. ये तो रहा एट 38 कमल कुंज था तो सही. देखो मैम ये तो उनका एड्रेस हुआ. हाँ, तो जहाँ है वहीं तो होगा. ये देखो ना लिखा है, ऑस्पिशियल ओकेजन ऑफ 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन, को अपने घर पे मना रहे होंगे ना, एट देयर रेजिडेंस लिखा तो है. ओके मैम. ओके, अब यहाँ पे कुछ भी वेन्यू मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि स्कूल में ही हो रहा है, स्कूल प्रेमिसेस में ही है. अगर अलग से होता है तो फिर हम मेंशन करते हैं द एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल दिस एट दिस एंड दिस ऑन सैटरडे द 15th नवंबर एट, और फिर हम जैसे फिक्की ऑडिटोरियम या फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो भी हम जहाँ पे भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, फिर हम उसका नाम लिखते हैं. फिर नेक्स्ट लाइन में आता है डॉक्टर MM जोशी HRD मिनिस्टर इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट और विल बी द चीफ गेस्ट. ओके, क्लियर है? यस मैम. चलो आगे बढ़ते हैं. मोहित, अब नेक्स्ट वाला आप पढ़ना, अगर आप हो क्लास में तो. नहीं, हर्षित पढ़ेगा, रुक जाओ. हर्षित. Yes, ma'am. You are the secretary of Haryana Civil Medical Doctors Association, 2345 Sector 15, Panchkula. You have organized a seminar on AIDS for the member of the association and invited a specialist guest speaker. Draft an invitation for publication in the newspaper. Medical seminar. We take immense pleasure in inviting all the members of the Haryana Civil Medical Doctors Association to a talk on AIDS global concern on 17th August 2022 at 11:30 a.m. at Hotel Ranjit Panchkula. Seven guest speakers: Dr. P.S. Alwalia, HOD Medicine, PGIMS Chandigarh. Note: the program will be followed by lunch organized by HCMD Association, 234 Panchkula 15. Phone number 2341-023. हाँ जी, अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा, मेडिकल सेमिनार. ठीक है, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर में देना और अटेंशन ग्रैब करनी है. हम यहाँ पे लिख, क्योंकि हमें सारे मेंबर्स को बुलाना है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे, हरियाणा सिविल मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन is organizing a medical seminar and all the members of the association are invited to attend a talk on AIDS, a global concern, और उसके बाद हम सारा ऐसे ही लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमने सबसे पहले होस्ट का नाम लिखा, इवेंट लिखा, क्या है उस इवेंट में मेन हेडिंग क्या है, कब है, किस टाइम है, वेन्यू क्या है, स्पीकर कौन है. ऐसे ही अगर आपको इसकी जगह आ जाए कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार फॉर टीचर्स, तो आप ऐसे ही सेम फॉर्मेट में उसे कर सकते हो. ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बच्चा. मैम पर क्वेश्चन में वेन्यू तो मेंशन नहीं है. हम अपने आप करेंगे ना बच्चा मेंशन, जहां नहीं है मेंशन. ओके मैम. ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर्स एसोसिएशन है, तो डॉक्टर्स एसोसिएशन को जगह तो मिलेगी ना, जगह पे तो ऑर्गेनाइज करेंगे जब उनको अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है तो. यस मैम. ठीक है, कहानी चलो अक्षर, अब आप पढ़ना नेक्स्ट वाला. अब देखो, अब दूसरे टाइप के आ गए, ये लेटर की फॉर्म में जाएगा. चलो अक्षर पढ़ो.
मैम तो कोई एक फॉर्मेट नहीं होता। बेटा एक फॉर्मेट है जो आपको बॉक्स वाले स्टाइल में दिखाया, दूसरा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको लेटर लिखने के लिए आ जाता है ना, ये 4 फॉर्मेट है कि जब आप लेटर की फॉर्म में इनवाइट कर रहे हो। मैम पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो। You are the director of Apex or Orientations, a leading name in postal coaching for competitive examinations, including IIT, JEE, and CBSE PMT. Write letters to the principal of some prestigious school inviting the name of 2 brilliant students from each institution to attend their counseling session free of cost. Apex Orientation, 38A Old Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi. 110005 phone 25384077 25th March 20XX the principal ABC School Delhi. हाँ जी अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट वही चल रहा है, आप लोगों को याद है अपने फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, तो हमने यहाँ वही किया। सेंडर्स एड्रेस एपेक्स ओरिएंटेशन 38A ओल्ड रोहतक रोड करोल बाग न्यू दिल्ली, अपना फोन नंबर दे दिया उन्होंने, उसके बाद डेट और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। ठीक, आगे अब बढ़ेंगे, वही देख लो सर मैडम आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है चलो Excuse me, मैम। पढ़ो अक्षर। हाँ जी बोलो, पहले चिरांश आप मैम बोलो। सब्जेक्ट सर मैम के पहले नहीं आएगा? वो पहले आए बाद में, इट हार्डली मैटर्स। मेरे हिसाब से सीबीएसई कहती है बाद में, याद है हमने जब अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे तो सीबीएसई कह रही थी सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए सर और मैडम को। ओके मैम। ठीक है ना, पर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है सब्जेक्टिव पेपर में, अगर हम चेकिंग की बात करें लिखा होना मैटर करता। ओके मैम। ठीक है चलो अक्षत आप पढ़ो बेटा आगे। Sir, madam, subject free counseling session, Apex oriented leading name in postal coaching for competitive examination. We regard our school as one of the prestigious institutions of Delhi. We shall deem it a personal favor if you recommend any 2 of your brilliant students to attend our counseling session for IIT, JEE, and CBSE PMT to be held on 10th April. The participation will be free of cost. Kindly send a recommendation by the 7th April. Ritu Nanda, Director. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे कोई 3 पैराग्राफ नहीं बनाने, हमने स्ट्रेट अवे लिखा which is the Apex Orientation is a leading name in postal coaching for competitive examination. Your school is regarded as one of the prestigious institution in Delhi. So thereby it is a personal favor. It would be a personal favor if you recommend any 2 or you are requested to recommend any 2 of your brilliant students to attend our career counseling session for IIT, JEE and CBSE PMT to be held on this and this day. The participation will be free of cost. इसमें आप ये भी ऐड कर सकते थे कि कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे अभी ऐड करने की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि 7 अप्रैल तक आपने रिकमेंडेशन मंगाए हैं, जिन बच्चों का नेम आएगा उनकी आप डिटेल्स अपने पास मंगाओगे और उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को पर्सनली फिर मेल किया जाता है। आजकल आपको जैसे प्रोसीजर पता होगा कि जब ये नेम्स ऐसे रिकमेंडेशन के साथ मंगाए जाते हैं तो उन नेम्स को उन बच्चों को पर्सनली फिर कॉन्टैक्ट किया जाता है और फिर उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि कहाँ पे आना है, किस टाइम आना है और क्या है। यस, एंड देन द नेम एंड द डेजिग्नेशन। ठीक है, तो 2 तरह के इनविटेशन होते हैं, एक तो वो जो हम बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है, और एक ये जो हम लेटर की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर बॉयज? यस Yes, ma'am. यस चिरांश, Yes, ma'am. अब नेक्स्ट वाला आप पढ़ना, ये है इनफॉर्मल इनविटेशन। अब इनफॉर्मल इनविटेशंस ना जनरली आप देखोगे कि ये लेटर की फॉर्म में ही है, छोटे छोटे जैसे लेटर्स जाते हैं ना, ये उनकी फॉर्म में ही है, ये बॉक्स की फॉर्म में नहीं होते इनफॉर्मल इनविटेशन, क्योंकि हम इन इनविटेशंस को जनरली अपने क्लोज फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस, रिलेटिव्स, ठीक है, इन सबको भेजते हैं और दे आर मोर टॉकिंग अबाउट आवर एक्सप्रेशंस, आवर पर्सनल फीलिंग्स, they are not formal in that way. Yes Mohit? Ma'am, marriage was informal or formal? Formal marriage is informal. Marriage is formal one because it is going on to take place at a large level. आप उसमें अपने सिर्फ रिलेटिव्स को नहीं बुला रहे हो, आप फ्रेंड्स को भी बुला रहे हो, आप कुछ बिजनेस नोन पर्सन, अगर जिनके कुछ प्रोफेशनल फ्रंट के लोग भी होते हैं वहां पे, है ना, सो इट इज अ फॉर्मल थिंग।
इनफॉर्मल में क्या है सोचो, जैसे मैं अपना एक हाउस वार्मिंग का फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं अ, मैंने मतलब एक नया घर खरीदा है, अभी हाउस वार्मिंग नहीं कर रही हूँ मैं। हाउस वार्मिंग से पहले मैं एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान कर रही हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ गेट टुगेदर एक छोटा सा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं एक इनफॉर्मल इनविटेशन लिखूंगी। ठीक है, छोटे कपड़े के लिए टेस्टी है। समझ आया डिफरेंस? मैं हाउस वार्मिंग करूंगी तो वहां तो अगर Yes, मैं उस ma'am. हाउस वार्मिंग को लार्ज लेवल पे कर रही हूँ, तो उस हाउस वार्मिंग, ये बेटा इस पे डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम Yes, एक ma'am. लार्ज लेवल पे काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और हम प्रोफेशनल फ्रंट से लोगों को बुला रहे हैं, तो वहां हो जाता है फॉर्मल इनवाइट। जहां हम लोगों को अपने क्लोज कॉन्टैक्ट, जिनको हमें सिर्फ एक होता है ना पर्सनली, जैसे मैसेज नहीं करते, आपको पता है टीचर को आप सब कुछ व्हाट्सएप में लिख के भेज सकते हो, एक सिक लीव की एप्लीकेशन या कोई अपना कंसर्न शेयर करना होता है, वहां पे आपको एप्लीकेशन ही मेल करनी पड़ती है ना। तो जहां जिन चीजों में हमें फॉर्मल होना पड़ता है कि वी कांट बी आवरसेल्व्स, वी हैव टू फ्रेम अ प्रॉपर लैंग्वेज टू नोटिफाई, देयर वी यूज फॉर्मल इनविटेशन। और जहाँ पे हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जहाँ पे हमें एक सिर्फ समझ लो जस्ट लाइक अ मैसेज we need to send it to them, there we write informal invitation, right? Clear? Yes, Yes, ma'am. yes, चलो अब एक काम करो, चिरांश पढ़ो बेटा आगे। Yes, ma'am. Informal invitations main characteristics. Informal invitation follow the pattern of ordinary personal letters. These letters are written to relatives, friends, and acquaintances. These letters are first, second person presentation. Personal feelings and emotions find an expression. The writer's address is given in the usual place. The salutation is usually dear plus name. The date of writing is given, but the year is generally omitted. The style and tone are relaxed and informal. Different tenses are used as the sense demands. The complimentary clause is yours sincerely. ठीक है, अब देखो, informal invitation patterns follow the pattern of ordinary personal letters. Personal letters मतलब informal letters. These letters are written to relatives, friends, and acquaintances. Acquaintances means somebody whom we know. These letters are first और second person. अब आपको याद है फॉर्मल वाले में हम क्या कर रहे थे, थर्ड पर्सन ओनली। यहाँ पे क्या है, आई, वी, यू, these can be used. Personal feelings, emotions, expressions can find a place here. Writer's address is given in the usual place, जैसे वहां लिखते थे, यहाँ पे भी वैसे ही शुरू में आएगा राइटर का एड्रेस। The salutation is generally dear, dear friend, dear uncle, dear brother. The date of writing is given, but the year is generally omitted, not mentioned. The style and tone are quite relaxed and informal. As you know, that it had been so many years that I had been struggling to get the exam cleared. So we are going to use that kind of language. But ye nahi hai, just bringing to your knowledge, I was preparing so hard and now I have got it. We are not going to use slang. We are going to make it informal. Different tenses are used as the sense demands. According to the sense of our letter, we are going to use present, past, or future tense. Then the complementary clause once again is yours sincerely. नाम लिखने से पहले फिर वही लिखते हैं, yours sincere, right? चलो हर्षित, Yes. बेटा now the solved examples are coming up, so you will read that. Now अब ये वाले उतने बड़े बड़े नहीं होते, वहां पे हमने याद है फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स भी जो आप लोगों ने सीखे थे, उसमें पैराग्राफ्स की बाउंडेशन होती है। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ बनता है जिसमें हम, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स क्या है, सिर्फ 50 वर्ड्स में लिखना है। यस, चलो हर्षित यू रीड। यस चिरांशु रेज हैंड। हम Yes, ma'am. फॉर्मल इनविटेशन में भी सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखना होता है। हाँ बेटा, हमारे पास वर्ड लिमिट नहीं है ना, 50 वर्ड्स ही लिखने हैं, तो उसमें एक ही पैराग्राफ बनेगा बेचारा। ओके मैम। हर्षित बेटा चलो पढ़ो। Are you there? Yes, ma'am. Hmm. Rohit has got success in CBSE PhD. He wants to celebrate his admission to Shivaji Medical College after throwing a party to his friends. Write an informal invitation giving details of venue, time, and date. Do not exceed 50 words. 33, 4, 27,
Priya Vihar, New Delhi, 15th July 2022. Dear Varun, you will be glad to learn that I have secured 80th rank in CBSE PMT competition. I have got admission in prestigious institution Shivaji College, Nagpur. I want to share a few happy moments of my life in the company of my old mates at a dinner in the Hotel Kanishka at 9 p.m. on 23rd July 2022. Please join the celebration and merrymaking. Yours sincerely. यस, हाँ जी, शिरांश आपने हैंड रेस किया। मैम जैसे इनविटेशन में सिर्फ एक ही फुल स्टॉप आता है मैम, लेकिन इनफॉर्मल में तो 2-3 फुल स्टॉप हो जाएगी। हाँ, तो इनफॉर्मल में तो हमें लिखा ही नहीं हो ना कि हमें एक ही उसमें लिखना है। देखो हमने मैम नहीं बस लिखा है। फॉर्मल में हमें एक ही फुल हाँ, स्टॉप में लिखना फॉर्मल है। में एक ही फुल स्टॉप में लिखना होता है। ओके मैम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारा एड्रेस है 33/427, ये किसका एड्रेस है? रोहित का एड्रेस है। ठीक है, then 15 July, then it is the date, and then the name of the friend, dear Varan, dear Aniket, जो भी आपको फ्रेंड का नाम लिखना है वो। यू विल बी, अब यहाँ पे देखो सारी लैंग्वेज इनफॉर्मल है। रैंक बताइए पहले, कहाँ पे नंबर आया है, और उसके बाद where he is organizing that get together with his friends for a dinner, what is the venue, time, date, and then please join the celebrations and merrymaking. Yours sincerely, Excuse me, ma'am. रोहित। हाँ जी बोलो। मैम इस वाली इनविटेशन में सब्जेक्ट क्यों नहीं आया? इनफॉर्मल है ना, तुम लोग भूल जाते हो। इनफॉर्मल में कब आता है भाई सब्जेक्ट? आता है कभी इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट? याद No, करो, ma'am. ओके मैम। इनफॉर्मल में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, तभी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, बड़े क्लोज वाले, जिनको हमने सबको नहीं बुलाना, पूरी बारात इकट्ठी नहीं करनी हमने, कुछ लिमिटेड लोगों के साथ जब हमने कुछ सेलिब्रेशन करना है, देयर इट इज इनफॉर्मल। ठीक है, हर्षित बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ो। You are Leena Sen. The wedding of your elder sister Leena Sen is going to be held on 15th 2022 at Lakeview, Udaipur. Write out an informal invitation to your friend Vinny requesting her to attend the function. 4357 Vasant Kunj, Rajnagar. 1st May 2022. Dear Vinny, you will be pleased to know that the wedding of my old elder sister Reena Sen is going to be held on the 15th May 2022 at Hotel Lakeview, Udaipur. The whole family will move there in the morning. I invite you to join us at lunch in the hotel on 15th. The wedding ceremony will take place at 8 in the evening. I do hope you will join us on the auspicious occasion. Yours sincerely, Leena. अब देखो, अब यहाँ पे तो इनवाइट जा रहा होगा ना, फॉर्मल इनविटेशन जा रहा होगा ना, तुम्हें लगता है ना शादी का इनविटेशन जा रहा होगा, फिर इस इनफॉर्मल इनविटेशन का क्या नीड था? यस Yes. मोहित? Ma'am, that's what I'm going to say. It is a marriage invitation, so it can be हाँ, why formal. here it is going, मेरा क्वेश्चन भी वही है। पहले आप लोग गैस करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैम क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि राइट आउट एन इनफॉर्मल इनविटेशन। बेटा फॉर्मल इनविटेशन मैम सबको जा रहा है। क्योंकि हाँ बोलो बोलो। क्योंकि वो सिर्फ लीना को लिखा जा रहा है। लीना को लिखा जा रहा है। आप लोगों ने कभी देखा है, आप लोगों के पास जब ई इनवाइट आ जाता है, घर में सब लोग रह रहे हो 2 साल से, तो आई थिंक आप लोगों ने इतना ऑब्जर्व किया होगा। अभी बीच में जब लॉकडाउन वगैरह सब खुल गया था, जो भी इनविटेशन कार्ड आए थे, चाहे ई इनवाइट की फॉर्म में या हार्ड कॉपी की फॉर्म में, फॉर्मल इनवाइट्स थे। एम आई करेक्ट? यस मैम। लेकिन Yes, उसके ma'am. बाद भी फोन कॉल आता था, आपको Yes, आना है, जरूर आना है। ma'am. वो फोन कॉल फॉर्मल होता था, इनफॉर्मल होता था? Informal. इनफॉर्मल। तो ये इनफॉर्मल इनविटेशन उसका काम कर रहा है। समझ आई? गॉट इट? एक्सक्यूज मी यस, बोलो बच्चा। मैम, अगर इस सेम क्वेश्चन में ये ना बताया होता कि हमें फॉर्मल लिखनी है, इनफॉर्मल इनविटेशन लिखनी है, तो मैम आप फिर कौन सी अगर लिखते? आपको किसी का नाम दिया हुआ है तो वहां पे तो आपका इनफॉर्मल ही हो गया ना। और यहाँ पे होता नहीं, आपको अपने टीचर को करना है इनवाइट, या आपको अपने बॉस को इनवाइट करना है, तो आपको लगता है वो इनफॉर्मल जाता? नो मैम। वहां पे फॉर्मल हो जाता है। वो पोस्ट पे डिपेंड करता है ना, किसको भेज रहे हैं। ठीक है,
Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बाकी डाउट क्लियर कर देगा, ठीक है चिरांश? तो अब देखो, आगे पढ़ने से पहले यू आर लीना सेन, अब हमने क्या किया, सिंपली वैसे ही एड्रेस आया, डेट आई, नेम आया, यू विल बी प्लीज टू नो दैट द वेडिंग, मतलब वेडिंग कार्ड जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो पर्सनली इनवाइट करना होता है, दैट यू आर इनवाइटेड, वेडिंग कार्ड तो सबके पास जा रहा है ना, relatives के पास भी, friends के पास भी, but it is not necessary everyone will be coming, but those people whom we want that they definitely should be there, हम उनको call करते हैं या personally confirm करते हैं ना, they would be coming, we urge them to come, so this invitation is doing that job. I hope it is clear, boys. Yes, ma'am. Yes, everyone? Yes, ma'am. Okay, so again, address of the sender, then date, then receiver's name, and then what is there, what is the date, venue, then timing, and then the last tagline that I do hope that you will join us in this festivity or in this celebration. Then yours sincerely and writer's name. देखो अब यहाँ पे भी क्या है, फॉर्मल इनविटेशन जाएगा, उस फॉर्मल इनविटेशन से पहले इनवाइट करना है, तो ये वो इनविटेशन जा रहा है. पढ़ो क्वेश्चन, मोहित बेटा रीड. Yes, ma'am. You are Naveen/Neha, the secretary of the youth club of your locality. You are organizing an inter-school group. You are organizing an inter-school group song competition. Invite a prominent musician to act as one of the judges. Youth Club, Nainital, 5th December 2022. Dear Mr. Khanna, I shall feel obliged if you kindly spare some time from your busy schedule and consent to the act as one of the judges for an inter-school group song competition to be held on 24th December 2022 at 2 p.m. in the community center, Dehradun Road. Kindly confirm your acceptance by 10th December. Yours sincerely, Naveen, Secretary. हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला इनविटेशन, ये वाला काइंड ऑफ लेटर कब लिखा जा रहा है? मैम पर ये तो हमें फॉर्मल लिखना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्टली म्यूजिशियन को लिख रहे हैं. डायरेक्टली म्यूजिशियन को लिख रहे हैं, लेकिन फॉर्मल इनवाइट से पहले लिख रहे हैं ना, वो हाँ करेगा तो उसका नाम छापेंगे ना फॉर्मल इनवाइट में. Yes, ma'am. गॉट इट? मैम जब उसने एक बार हाँ बोल दिया, हम उसे फिर दोबारा से इनवाइट क्यों भेजेंगे? कहाँ हाँ बोल दिया, अभी तो हाँ करवाने के लिए तो कर रहे हैं. मैम अगर इस इनविटेशन का रिप्लाई आ गया कि ये मतलब हाँ हाँ, वो उसके आएगा, तो हम बाद इसमें उसके दोबारा बाद थोड़ी फॉर्मल ना- इनवाइट जाएगा उन्हें, उसके बाद जाएगा फॉर्मल इनवाइट, जो हमने ऊपर पढ़े ना, वो वाला इनवाइट तब मैम जाएगा. ऐसे तो अगर हाँ बोलो. मैम ऐसे तो अगर कोई फंक्शन है और हम किसी बॉस को इनवाइट कर रहे हैं तो मैम ऐसे तो हमें पहले उसे इनफॉर्मल इनवाइट लिखनी चाहिए. नहीं नहीं मैम नहीं, फिर ये जब वो एक्सेप्ट इनफॉर्मल, करेगा सुनो तब सुनो formal. बेटा, बॉस अगर चीफ गेस्ट है, अगर बॉस जो है वो मेन हेड है, जिसके ऊपर सारा फंक्शन टिका हुआ है, वो मेन प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, जिसको आप स्पेशली इनवाइट कर रहे हो, हर एक फंक्शन का एक चीफ गेस्ट होता है ना. अगर आप किसी वेडिंग में इनवाइट कर रहे हो तो वहां पे तो उनको आप सिर्फ इनवाइट कर रहे हो, उनका एक्सेप्टेंस अलग से आपने उन्हें कह दिया, उनको अलग से इनवाइट लिख दिया, खत्म हो गई बात. यहाँ पे आप एक्सेप्टेंस ले रहे हो कि सामने वाला चीफ गेस्ट बनने के लिए तैयार भी है या नहीं है, जज बनने के लिए तैयार भी है या नहीं है, उसके बाद ही तो फॉर्मल इनवाइट में उनका नाम छपेगा ना. गॉट इट? लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए सो एंड सो पर्सन इज द जज, उससे पहले तो उस बंदे का कंसेंट तो लेना पड़ेगा ना, वो है भी या नहीं है विलिंग. वो कहते नहीं जी मैं तो मीटिंग में हूँ, मैं तो बिजी हूँ, तो यहाँ पे ये पहले वो इनवाइट जा रहा है, फॉर्मल है, लेकिन इसमें हम पोलाइटली एक कंसेंट ले रहे हैं दैट द पर्सन वुड बी एक्सेप्टिंग आवर प्रपोजल, राइट? तो अब हमने Okay, क्या ma'am. किया, सीधा यहाँ पे यूथ क्लब नैनीताल, देन डेट, then organizer, or then the person's name. I shall feel obliged if you kindly spare some time from your busy schedule and agree to act as one of the judges for an inter-school group song competition to be held on so and so date at so and so. हम ये सब क्यों mention कर रहे हैं, date, time, because the person whom we are asking, he or she might be busy also. उनके अपने कोई pre-planned appointments हों, तो if the person is free and is willing, then the person would be able to say yes.
एंड वी आर ऑल्सो मेंशनिंग द डेट कि आप इस डेट तक मुझे कंफर्म कर देना अगर आप आ रहे हो तो, नहीं तो हम कोई और जज ढूंढेंगे, आप नहीं आओगे तो उसका नाम छापेंगे फिर। गॉट इट? तो Yes, यहाँ पे वो ma'am. कंफर्मेशन के लिए लेटर लिखा जा रहा है कि आप एक प्रोमिनेंट म्यूजिशियन को इनवाइट कर रहे हो, अगर वो आते हैं तो आप उनका नाम छापोगे, नहीं तो किसी और का नाम छापोगे, तो उनसे वो कंफर्मेशन तो लेना पड़ेगा इनवाइट करके उन्हें। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो, यू आर अतुल गुप्ता। मोहित बेटा पढ़ो, ये वाला लास्ट है, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से इसके बाद रिप्लाईज आ जाएंगे। हाँ लास्ट है ये, तो Yes, ma'am. इनविटेशन का पॉइंट You खत्म हो जाएगा। हाँ जी, you are Atul Gupta. You are opening a new branch of the business house, New Light Furnishing at C32 Ansal Plaza, Delhi. Write an invitation to your uncle to attend the inauguration ceremony and bless you. अब देखो, मोहित तुम पढ़ो इससे 2475 पहले, मोहित रुको रुको, पढ़ो इससे पहले। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, हमने भी बात की थी ना, कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी है, शॉप का इनॉग्रेशन हो रहा है, शोरूम का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो वहां पे हम फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। याद है हमने ऊपर लिखा था जब स्टोर का इनॉग्रेशन था, जो हमने पहला इनविटेशन लिखा था। अब यहाँ पे क्या Yes, है, ma'am. उस फॉर्मल इनविटेशन के साथ ये इनवाइट जाएगा अंकल के पास, क्योंकि अंकल को पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं। फॉर्मल इनविटेशन जनरल पब्लिक के लिए होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे किसी स्टोर ओपनिंग के लिए लिख रहे हैं तो फॉर्मल इनविटेशन क्या है, जनरल पब्लिक के लिए, उसमें हम किसी का नाम नहीं लिख रहे ना, वो जनरल पब्लिश होगा। इसके साथ अलग से ये वाला इनवाइट जाएगा अंकल को पर्सनलाइज करने के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर बॉयज? Yes, ma'am. चलो मोहित कंटिन्यू बच्चा। Yes, ma'am. 2475D, Model Town, Delhi. 27th September 2022. Dear uncle, with the grace of the God and your blessing, I am diversifying my business concern. A new branch of our New Light Furnishing will be inaugurating at 332 Ansal Plaza, Delhi on 5th of December 2022 at 9 a.m. Please come in the time to join the ceremony and shower your blessing on us. Yours sincerely, Atul Gupta. हाँ जी, अब देखो क्या है, ही इज इनवाइटिंग अंकल की आपकी ब्लेसिंग्स और गॉड की ब्लेसिंग्स की वजह से आई एम गोइंग टू एक्सपैंड माय बिजनेस एंड अ न्यू ब्रांच इज गोइंग टू ओपन। अब ये फॉर्मल इनवाइट के साथ जाएगा कि मैंने न्यूज़पेपर में या मैंने ये इनवाइट छपवाया है ऑलरेडी, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स भी मुझे चाहिए, तो आपको भी इस शोरूम की ओपनिंग में आना है। क्लियर? यस Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am, clear. इनविटेशन दो तरह से होते हैं, लेकिन आप जब अभी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। जब हम जनरल लिख रहे हैं या फिर हम किसी को पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं, हमने देखा ना जो पब्लिश्ड इनविटेशन होते हैं उसमें हम कभी भी जिसको इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम नहीं लिखते, उसका नाम अलग से लिखा जाता है। ऑलराइट, और कुछ पूछना है इनविटेशन से रिलेटेड तो पूछो। मैम इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि कब हमें फॉर्मल लिखनी होती है और कब हमें इनफॉर्मल लिखनी होती है। फॉर्मल आपको तब लिखनी है जब आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग है बेटा, जैसे लेटर में होता है ना फॉर्मल कब लिखनी है और इनफॉर्मल कब लिखनी है। अब अगर खाली अंकल को लिख रहे हो तो वो इनफॉर्मल ही जाएगी, लेकिन आप अगर जनरल लिख रहे हो, आपको सिंपली कहा हुआ है, अगर आप इस क्वेश्चन में सोचो, मैं इसी वाले क्वेश्चन को रीड करती हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन फॉर्मल के लिए बन जाएगा। यू आर अतुल गुप्ता, यू आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ योर बिजनेस हाउस न्यू लाइट फर्निशिंग एट C32 Ansal Plaza, Delhi. Write an invitation to write an invitation for all to attend the inauguration ceremony. खत्म? तो यहाँ पे कौन सा Yes, लिखा जाएगा? फॉर्मल इनविटेशन। मैम जब जाएगा तो ये सिर्फ रिलेटिव्स वगैरह को, तो मैम क्यों उस केस रिलेटिव्स में को तो क्यों जाएगा बच्चा? शोरूम की ओपनिंग है ना, फर्निशिंग शोरूम की ओपनिंग है, तो आप उसको जनरल दोगे ना। जैसे हमने ग्रोसरी वाला नहीं दिया था पहले वाला कि डिस्काउंट मिलेगा, फर्स्ट डे है, अ न्यू शोरूम इज गोइंग टू बी ओपन। आपने देखा नहीं अभी कस्तूरी ज्वेलर का यहाँ पे खुला था सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास, तो उन्होंने कितने बड़े बड़े बैनर्स लगाए थे, देखा था? तो वो उनके लिए थोड़ी था खाली कि उनके रिलेटिव्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी था, राइट? उसके साथ साथ उन्होंने अपने रिलेटिव्स को इस तरह का एक छोटा सा नोट साथ में भेजा होगा,
जैसे हमने अभी बात की ना, अंकल को ये जो नोट भेजा गया, इनविटेशन नोट, उस फॉर्मल इनवाइट के साथ ये नोट साथ में इनफॉर्मल भेजा गया होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? यस मैम। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं, अभी क्वेश्चन करोगे तो करते करते तुम्हें समझ आ जाएगा कि किसको लिख रहे हैं तो किस अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा। रिलेशनशिप और पर्पस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम किसको लिख रहे हैं, फॉर्मल की फॉर्म में जाएगा या इनफॉर्मल की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी नेक्स्ट क्लास आते आते यू पीपल विल बी ग्रूम्ड अप। ऑलराइट, यस मैम। चलो, on this note I'm stopping the screen sharing and we हमें people we are, PDF सेंड कर देना। हाँ अभी करूंगी बच्चों, पहले रिप्लाईज पढ़ा दो नहीं तो